Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today we taking one more time introduction of chapter number 9, Force and Law of Motion, class 9 Science. Okay, student. In the previous video, we seen about the concept of force. What is the meaning of force, student? In the previous video, we told about the force. Force is a push or pull. First point is there. What is the meaning of the force? Force, that means a push or pull. And second one, every action of object in every day. मतलब may be हो, for example, every action of a body in every day defined by the force. The effect of force. What is the meaning of the effect of force? That means applications of force. First one, by use of force, we can convert moving body into stationary body. Second one, by use of force, we can convert stationary body into moving body. Okay, student. Third one, we can stop any moving body suddenly. Okay, student. Both are the applications of the force. And how many types of the force available in earth? Number of force according to the syllabus of the science, but according to the syllabus of your book, some types of force we defined. First one, attraction force. What is the meaning of the attraction force? If anybody attract another body, this type of force are known as the attraction force. Second one, repulsion force. If anybody reflect another body, for example, let we consider we consist are two magnets. You know that very well. Magnet consists of two poles. First one north pole and second one south pole. When north pole of first magnet near of north pole of second magnet, here we getting the repulsion force between the magnet. Okay, student. Here when north pole of first magnet and north pole of second magnet, then repulsion. These type of force are known as repulsion force. But when north pole of one magnet nearest of the south pole of another magnet, some type of force are available. These force are known as attraction. सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ स्टूडेंट, when to like poles, when to like north north or south south, we getting the repulsion. But in the case of unlike poles, that means a north south or south north, consists the attraction force. Okay, student, two types of the force, attraction and repulsion. Then after we study about gravitational force. What is the meaning of the gravitational force? Acceleration due to gravity, that means a small g, and universal gravitational constant, gravitational force, capital G. The value of capital G will be equal of 6.67 into 10 to the power. Okay, student, and value of small g will be equal of 9.8. बार बार इसलिए बोलता हूँ साइंस टीचर हूँ, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बार बार सुनोगे, समझोगे तो हमारे माइंड में सेट हो जाएगी. ओके स्टूडेंट. ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बिटवीन द टू रिजिड बॉडीज, फॉर एग्जांपल सन एंड अर्थ. अर्थ ऑलवेज rotate around the sun in a fixed elliptical path due to some type of attraction force by the sun. These type of force are known as gravitational force. Student, अगर जो अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे. बट इफ एनी बाइकर मूविंग इन द वर्ल्ड with the high velocity, these type of the force towards in the direction of center are known as centripetal force. Okay student, attraction force, repulsion force, gravity, gravitational, then centripetal force. If one surface applied the force on another object, one surface, okay student, the surface applied the friction force
on the surface of the moving object. These type of force are known as friction force. Number of forces are available. What is the importance of the force for this chapter? Law of motion basically defined by the concept of law. Okay student, we will start with the new topic, part 2, force and law of motion, introduction, part 2. Part 2, that means we also introduced some topic in the part 1 in the previous video. Now we see part 2 of this session. Part 2, that means Newton's law of motion. Who is Newton? Newton is a great scientist. Okay student, in the case of science, great scientist. When we study mathematics, some Newton's formula, that means Newton also a mathematician. But here Newton is a great scientist which defined a word force by use of some law. Law are known as first law of motion, second law of motion, and third law of motion. Now today we will start with the first law of motion. What is the meaning of the first law of motion? Simply, first law of motion, a body at rest will at rest. What is the meaning of this sentence? A body at rest will at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed. Student, first one is the uniform speed and second one is a straight line. That is the most important point. जब भी हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो आप बस इतना बताते हैं रेस्ट, तो रेस्ट, मोशन तो मोशन। स्टूडेंट ये बोलता है कि पर्टिकुलर कोई भी बॉडी अगर जो रेस्ट कंडीशन में है तो इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज इन द रेस्ट, और सेकेंड मोशन तो मोशन। बट यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ, अगर जो पर्टिकुलर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, मोशन में तो रहेगा बट ऑलवेज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड, उसका एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना तो उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा। ओके स्टूडेंट, दैट इज द complete statement of Newton's first law of motion. If any body at a rest will be rest में है तो rest में रहेगी, and a body in motion will continue in motion in a straight line, motion में है तो वो हमेशा motion में रहेगी but in the straight line with the uniform speed, unless it is completely by external force in the absence of any external force. मतलब अगर, ठीक है, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल इस मार्कर को मैंने पुश कर दिया है तो ये मूविंग कंडीशन में आ जाएगा और ये कभी भी नहीं रुकेगा। बट स्टूडेंट आप बोलेंगे सर ये तो रुक जाता है आफ्टर सम टाइम इंटरवल ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ सरफेस। सरफेस क्या होती है? रफ होती है, वो 100% स्मूथ नहीं होती है। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ठीक है। एक ऐसी सरफेस लीजिएगा जिसकी रफनेस ज़्यादा है और छोड़िएगा तो वो जल्दी रुक जाएगा। जो ज़्यादा स्मूथ है तो उस पर उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी ज़्यादा मिलेगा। मतलब अगर जो उसका रफनेस बिल्कुल जीरो हो जाए, फ्रिक्शन विल बी इक्वल ऑफ जीरो and no other medium, that means the air will be equal of zero, कोई external force नहीं है, तो that is 100% गारंटी कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं रुकेगा। ठीक है, अगर जो मैंने किसी बुक को टेबल के ऊपर रख दिया है तो वो आप देखिए जब आप घूम फिर के आ जाते हो 10, 15, 20 दिन के टूर के बाद भी तो वो वहीं पर मिलेगी इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ओके स्टूडेंट, बट अगर जो, ठीक है, आपने उसको उठा लिया मतलब क्या कर रहे हो? आप पुल कर रहे हो, अनदर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर जो आप किसी भी कंडीशन में फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही होगी और वो मोशन में है तो मोशन में ही होगी। दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दिस लॉ also defined by the law of inertia. This law also known as
लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द मीन ऑफ इनर्शिया, पहले ये समझते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द इनर्शिया। सिंपल भाषा में बोलूंगा, अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी आर नोन एज इनर्शिया। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट वी कंसिडर टू टाइप्स ऑफ द एग्जांपल पैरेलल। फर्स्ट वन, ठीक है, एक टेबल है विच कंसिस्ट ऑफ बुक एंड द मास ऑफ बुक विल बी इक्वल ऑफ 1 kg होता है। ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर अनदर टेबल। दिस इज अ फर्स्ट टेबल, ठीक है, एंड दिस इज अ सेकेंड टेबल। ओके स्टूडेंट, टेबल ए, टेबल बी। टेबल ए कंसिस्ट अ बुक ऑफ 5 kg and table B consists of book of 500 kg। इतना वेट होता है बुक का। यस, लेट अस कंसीडर, अगर जो हम इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, आपने फोर्स लगाया तो ओके, यू आर द हेल्दी पर्सन, आई अप्रिशिएट। तो आप 5 किलो की बुक को क्या कर सकते हैं सर, हिला सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। मतलब कहीं ना कहीं आपने, ठीक है, क्या करा, चेंज इन कंडीशन रेस्ट टू मोशन। बट आप यहाँ पर अकेले पर्टिकुलर आप 500 kg की बुक को रेस्ट से मोशन में नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ सर, एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे भी लगाया, एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे भी लगाया, मतलब कहीं ना कहीं डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट मीन्स अ मास ऑफ बॉडी। ओके स्टूडेंट, तो दिस mass of body, that means a property of object defined by the inertia। okay student, first one ये मैंने आपको जो बताया है ये इसका प्रैक्टिकल यूज बताया। वर्ड में देखते हैं, द टेंडेंसी अनदर वर्ड फॉर द प्रॉपर्टी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमाइन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू इन द मोशन, टेंडेंसी आर नोन एज द इनर्शिया। मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कोई बॉडी मूविंग में है तो वो मूविंग में ही रहना चाहती है, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइंड बाय द वर्ड inertia। The inertia of object depends on its mass। okay student, मैंने ये आपको एग्जांपल समझा था, द डिपेंड्स ऑफ द inertia of object depends on its mass। This is a inertia। In a short form, what is the meaning of the inertia? Inertia, that means a property, that means a property of object and it always depends on mass of object। okay student, for example, आपके सामने मैं साइकिल से आ रहा हूँ, ठीक है, तो आपकी इच्छा हुई मुझे रोकने के लिए, जस्ट फॉर द ब्रेक, तो आप वहाँ पर मुझे रोक सकते हैं। बट अगर जो ट्रेन आ रही है और आपकी इच्छा हुई रोकने की, बहुत ही गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बिकॉज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, सो you cannot stop। that means inertia depends the mass of object। okay student, inertia, by use of inertia we can define, हम डिफाइंड कर सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया वी कांट अंडरस्टैंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। second law of motion defined by the term momentum। तो पहले ये समझते हैं स्टूडेंट मोमेंटम क्या होता है। कुछ बच्चे सिर्फ इतना समझते हैं मोमेंटम विल बी अ प्रोडक्ट बिटवीन द मास एंड वेलोसिटी। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं P इक्वल टू M इंटू V। मोमेंटम विल बी इक्वल ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने इस पेन को आपकी तरफ थ्रो करा, ये जो पेन है इसका मास है 1 kg। ओके स्टूडेंट, एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ 0.00001 किलोमीटर पर आवर। समझिए, मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, इसका वेट 1 kg है, बट ये बिल्कुल धीरे धीरे आपकी तरफ आएगा, तो ये ऐसा टच होके गिर जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अ
these property are defined by the momentum। तो मैं इस एग्जांपल से क्या बताना चाहता हूँ कि momentum depends on the mass and velocity of object। 1 kilo mass and velocity will be equal of 0.000 किलोमीटर पर आवर। तो धीरे धीरे आएगा। तो आपको यहाँ पर जहाँ पर आपका ये पेन गिरा है वहां पर कुछ भी आपको प्रेशर या कुछ चोट लगेगी नहीं सर, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है। अगर जो मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करता जाऊं, ठीक है, विल बी 1 किलोमीटर पर आवर, फट लगा, और स्पीड 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर स्पीड इंक्रीज होगी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम ऑल्सो विल बी इंक्रीज। ओके स्टूडेंट, यू नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम। अगर जो मोमेंटम को समझे तो मोमेंटम दैट मीन्स मास इनटू वेलोसिटी समथिंग, बट प्रैक्टिकल लाइफ में मोमेंटम को समझेंगे तो मास इंक्रीज होगा या वेलोसिटी इंक्रीज होगी या दोनों इंक्रीज होंगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वहां पर भी आपको फोर्स को समझना है, तो मोमेंटम भी लगभग फोर्स जैसा ही होता है, बट मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द टू क्वांटिटी, फर्स्ट वन मास एंड सेकंड वन विल बी इक्वल ऑफ वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, m इंटू बी, मास इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। अगर जो ये दोनों डिक्रीज होंगे तब ही मोमेंटम डिक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, मोमेंटम, द मोमेंटम of a body is defined as a product of its mass and velocity। Simple definition of momentum, momentum that means a mass into velocity, product between the mass and velocity। यहाँ पे लिखा हुआ है, but momentum, what is the mean of the momentum? ध्यान से देखिए, what is the mean of the velocity? Velocity that means the rate of change in displacement, and displacement is a vector quantity such that velocity also a vector quantity। Velocity depends on displacement, displacement is a vector quantity due to displacement, vector also a velocity also a vector quantity। mass into velocity, velocity क्या है, वेक्टर, तो मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर बॉल का मास 2 kg है, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिस पे हमको टारगेट करना है वो इस तरफ है और हमने इस डायरेक्शन में फेंक दिया है। डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी क्या है, हाई है, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स अ मोमेंटम रिक्वायर्ड द डायरेक्शन, ड्यू टू दिस डायरेक्शन मोमेंटम ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट, मोमेंटम ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज अ किलोग्राम मीटर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, किलोग्राम जस्ट फॉर द मास, मास कैलकुलेट इनटू द फॉर्म ऑफ मास, हमेशा किलोग्राम में। यस, द एसआई यूनिट ऑफ मास विल बी इक्विवेलेंट ऑफ किलोग्राम एंड एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्विवेलेंट ऑफ मीटर। मास इनटू वेलोसिटी, तो मास दैट मीन्स अ किलोमीटर इनटू मीटर, तो फॉर्मूला क्या बना, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी इक्विवेलेंट ऑफ kilogram meter per second। Why we take the per second velocity with respect to time, so per second। Okay student, every moving body propose the momentum। मैंने अभी हाल बताया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्यों सर यहाँ पर अगर जो मैं इस फॉर्मूले में वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ 0, व्हाट इज द मीन ऑफ द वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ 0, दैट मीन्स अ कंडीशन ऑफ रेस्ट। ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वेलोसिटी 0 से इंक्रीज ही होगी। ओके, बट अगर जो रेस्ट में है तो वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ 0 एंड 0 इनटू एनीथिंग विल बी इक्वल ऑफ 0। मतलब अगर जो किसी की वेलोसिटी 0 हो जाए तो उसका मोमेंटम भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0। तो मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम जस्ट डिफाइंड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप बोलेंगे सर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो हमने सीखा ही नहीं है। वी understand only the momentum। In the next video we will see about the second law of motion and third law of motion। Okay student, thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajuda। Student please like,
share, and also subscribe our channel. Please study from our channel. Thank you so much.